Hello guys, welcome to today's session. So today we are gonna talk about mega trend. Okay, so basically this is the second part. Okay, now first of all, if you are new to the video, so there is a link in the description if you haven't downloaded the application. Okay, so we have application of wealth and derivatives as well. Okay, so this is the support. Okay, so if you have any doubt or query, so you can go to this number. Okay, you can dial this number, you can write us mail here. Okay, and you will get all the information of and also in the learn section we have the video library. So here you will see all the videos, okay, of the related tools. Okay, and it will be available in all the languages, for example English, Hindi, Tamil and Marathi. Okay, so you can go there and you have the access, right? So for example, if you will download the software, so there are 25 free tools. Okay, and after your subscription there will be 80 tools that you can use, okay, in the pro application, right? Now coming back to today's topic, so today we are going to talk about the mega trend, right? And in the previous video we have talked about mega trend, that was the past first, and we have covered manufacturing sector in that video. ठीक है? तो बेसिकली गाइस अगर आज के वीडियो की हम बात करें, सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द अदर सेक्टर विच इज गोना बी इन द मेगा ट्रेंड. ठीक है, तो पहले अगर मैं मेगा ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो मेगा ट्रेंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या रहेगा, कि बेसिकली हम उस चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि विच विल बी इन द मूवमेंट फॉर लाइक in future 2 or 3 years, but we are talking about the sector which will be in the movement for next 5, 10, 15 या 25-30 साल के लिए. ठीक है, जो रहने वाला है ट्रेंड में. ठीक है, तो बेसिकली जो ऐसे ट्रेंड में रहने वाला है, सो उन सेक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं. सो लास्ट टाइम वी कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इन टूडेज वीडियो वी आर कवरिंग हेल्थ केयर सेक्टर. ठीक है, सो हेल्थ केयर सेक्टर इज द सेक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी द मेगा ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू द इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज योर सेकेंड सेक्टर, राइट? नाउ if we are talking about healthcare, so basically it is not like what we have what we studied before, like old pharma companies, but now if we are talking about healthcare sector, okay, so now we have new definitions, because in healthcare we have certain segments. For example, diagnostic centers. Okay, so basically centers जहाँ पे आप जाते हो, okay, and you get your blood tested, urine tested, so these are those centers, right? Then we have the hospitals, APIs, okay, pharmaceutical companies. Now API is basically a component that is used in the drugs. Okay, then health insurance companies also there in the healthcare segment. Then we have the contracts manufacturing. Okay, so these are the third parties basically who makes drugs and medicines, right? Then we have the biosimilar also. Okay, so all these components are included in the healthcare segment. Okay, so when we say that the healthcare segment is increasing, so basically we will be we can be talking about any one of them. Okay, for example, in today's scenario, if I'll tell you, if a person wants a health insurance, right? If a person wants a health insurance, if a person wants a life insurance, if a person wants to change his or her job, okay, so basically that will also be included in the healthcare segment, because then he has to go in the diagnostic center. ठीक है, तो उसको वहां पे जाना पड़ेगा और उसे वहां पे अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे. So basically that will change somehow the healthcare segment and it will boost the sector. Okay, okay, now अगर मैं थोड़े मैट्रिक्स की बात करूं यहाँ पे, if I'll give you some metrics, okay, तो अगर मैं बात करूं एक कंबाइंड एनुअल जो ग्रोथ होगा, ओके, तो बेसिकली अगर मैं देखता हूं कि जो मेरा आपका मेडिकल टूरिज्म आता है, ठीक है, हमने देखा मेडिकल टूरिज्म में, तो कंबाइंड एनुअल जो ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, वो करीबन कितने की देखने को मिली है? 31% की देखने को मिली है. किसमें? मेडिकल टूरिज्म में. ओके, ये पहली चीज थी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक ने भी ये हमें बोला हुआ है कि जो हमारी टोटल ग्लोबल जीडीपी है, ठीक है, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया जीडीपी, बट जो ओवरऑल जीडीपी है, ओके, तो उस ओवरऑल जो ग्लोबल जीडीपी है उसका करीबन 11%, ओके, हम कहां यूज कर रहे हैं? सो वी आर यूजिंग दैट इन द हेल्थ केयर सेक्टर. ओके, नाउ 11% इट इज, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इट इज अ स्मॉल नंबर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल जीडीपी, ओके, सो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाएगा. ठीक है,
तो ये चीज है। नाउ कमिंग बैक टू अनदर थिंग, ठीक है, अब भी आप चेक कीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी हैव अप्रोक्सीमेटली करीबन 11 लाख डॉक्टर्स, ओके, वी हैव इन इंडिया, ठीक है। अब इन 11 लाख डॉक्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 जो है, ठीक है, दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, ओके, सो दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, एंड 1 लाख डॉक्टर्स जो हैं ये अभी न्यूली रिक्रूट हुए हैं, ठीक है, न्यूली रिक्रूट। नाउ क्यों हुए हैं? बिकॉज नाउ द इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियाज गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द हेल्थ सेक्टर। हाउ? बिकॉज एज वी हैव सीन इन द न्यूज रिसेंटली ऑल्सो, ओके, हर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू हॉस्पिटल जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट भी उस पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, अभी हेल्थ सेक्टर पे तो कर रही है, अच्छा, मैं अगर न्यू डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं या उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो अभी स्टिल प्रैक्टिस में है या फिर नए आ रहे हैं, सो हाउ इट विल क्रिएट एनी इंपैक्ट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो पहले अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यूएसए का एक एवरेज लेके चले, तो यूएसए में क्या होता है कि बेसिकली जो एक डॉक्टर है वो 10 से 12 टेस्ट आपको क्या करेगा, प्रिस्क्राइब्ड करता है, ओके, फॉर एनी डिजीज जो वो डायग्नोस कर रहा है, तो उसके लिए 10 या 12 टेस्ट आपको लिख के देगा। इन इंडिया अगर मैं पुराने बात करूं, जो पुराने डॉक्टर्स थे, ठीक है, तो वो एक एवरेज, ठीक है, कितने 2 या 2.5 या 3 करीबन इतने टेस्ट हमको प्रिस्क्राइब करते थे, राइट। सो दैट इज बेसिकली नॉट द, ठीक है, तो इट वाज बेसिकली द थिंग दैट द ओल्ड डॉक्टर्स यूज्ड टू डू, ओके, जो ओल्ड हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे, हॉस्पिटल्स थे, ओके, सो बेसिकली दे यूज्ड टू प्रिस्क्राइब 2-3 टेस्ट, ओके, फॉर एनी डायग्नोस, राइट। नाउ अब जो हमारे पास न्यू डॉक्टर्स आ रहे हैं, ओके, द डॉक्टर्स हु आर स्टिल इन प्रैक्टिसिंग, ओके, सो बेसिकली दे आर टेकिंग मोर they have been more inclined towards the new biotech, new inventions, जो साइंस आ रही है उनकी तरफ ज्यादा inclined हो रहे हैं, ठीक है। तो जब वो ज्यादा inclined हो रहे हैं तो now they are prescribing more test, okay, अगर ज्यादा टेस्ट होंगे तो then जो भी पेशेंट है या फिर पर्सन है, he has to go to diagnostic center again, he has to maybe hospitalized होना पड़े, ठीक है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कुछ भी लेना पड़े। सो बेसिकली दिस इज अ विस्कस, एक सर्कल बनता जा रहा है और इस सर्कल को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। सो देन आपको क्या पता करना है कि इस सेक्टर में कौन सा ऐसा इक्विटी स्टेक है, ठीक है, जिस पे मैं अपने पैसे लगाऊंगा या फिर जो यहां से पैसे बना रहे हैं, ठीक है, जो ये पूरा सर्कल आपका है, तो इसमें कौन सा ऐसा इक्विटी स्टेक है जो यहां से पैसे बना रहा है और वहीं पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, और वही आपका किसमें जाएगा, मेगा ट्रेंड के लिए जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द इसके बारे में। नाउ दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं दैट इज डेमोग्राफिक एस्पेक्ट, ठीक है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं डेमोग्राफिक एक्सपेक्ट की, ठीक है, तो क्या रहेगा, देखो हमारे पास 3 तरह के एक्सपेक्ट वो आते हैं, ठीक है, जो हमारा एज ग्रुप रहता है। सो जिसमें हमारा क्या आता है, बच्चे आते हैं, ठीक है, फिर एक हमारा आता है मिडिल एज ग्रुप, ठीक है, तो मिडिल एज ग्रुप हमारा एक आता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सेक्टर जो बेसिकली अर्निंग सेक्टर है और जो जीडीपी में एक्चुअली थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है, जिसमें हम सीनियर सिटीजन को रखते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये आता है। अब अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है कि हमारा जो है 23, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में करीबन 23 करोड़, ठीक है, या फिर इससे थोड़े से ऊपर जो है ये लोग कौन से हैं जो ऑलरेडी 65 के अबव है, ठीक है। और अगर इसको मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो करीबन आपका शायद ये कितना आएगा, 13 या 14% या इससे ज्यादा आता है, शायद 24 या 25%, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि 24 से 25 जो परसेंट जो पॉपुलेशन है वो किस में आ रही है, 65 प्लस आ रही है, ओके। सो बेसिकली अगर वो इस एज ग्रुप में आ रही है, ठीक है, तो देन दे विल बी यूजिंग मोर मेडिसिन, ठीक है, ज्यादा मेडिसिन का वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा हॉस्पिटल्स का वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर ज्यादा जो आजकल आप देखोगे कि नाउ देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज की घर बैठे बैठे यू कैन ऑर्डर योर मेडिसिन, ओके, यू हैव द डॉक्टर्स हु कैन प्रोवाइड यू देयर एडवाइस मतलब डिजिटली वो लोग अपनी जो एडवाइस है आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो दे आर टेकिंग ऑल ऑफ दिस
सर्विसेज जो हमारे 65 से ऊपर है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. ओके, और हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी अगर हम 2024 में है तो अंटिल 2050 दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो हमारा सीनियर सिटीजन ज्यादा हो रहा है, सो दैट विल इंक्रीज. ओके, बिकॉज द हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट. सो दैट वाज द सेकंड थिंग. नाउ अगर मैं तीसरी चीज पे आऊं, अनहेल्दी लाइफ, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, हम अनहेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं. पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओके, सो धीरे धीरे जो इंडिया है, सो दैट इज बिकमिंग एक कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटिक का. ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स, जैसे शुगर की आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट डिजीज हो रही है. ओके, सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. ओके, और ऐसा नहीं है सिर्फ डिजीज इंक्रीज हो रही है, इनके जैसे हम अगर AI बिल्ड कर रहे हैं तो नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट काइंड ऑफ इनोवेशंस, ठीक है, जो इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज द थिंग. तो अनहेल्दी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अनहेल्दी लाइफ इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको हमें सॉर्ट आउट भी करना है, राइट. सो दैट इज व्हाई वी आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर. ओके, अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ सेक्टर जो है दैट इज अ न्यू एक कोई सेक्टर है जिसको मैं आज बता रहा हूं. द पीपल हु आर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. बट this will be a mega trend because of the changes, because of the drastic changes that is happening all around the world. So that is why we are considering this sector, okay, very important, right. Okay, now आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, कि इंडिया में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमारा ये सेक्टर है, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल लीडरशिप जो है फार्मा की, ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं वहां पे अपनी एक प्लेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, इफ विल टॉक अबाउट द ग्लोबल लीडरशिप हाउ, तो अगर मैं बात करूं तो करीबन 60% ऑफ द जो ड्रग्स है, द मेडिसिन, सो ये कहां पे बनाई जाती हैं, सो दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट. अगर मैं बात करूं जेनरिक दवाइयों की, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, सो 20% ऑफ देम आर ऑल्सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ऑल्सो. ठीक है, 20% जेनरिक बन रही है और 60% जो हम ड्रग्स बना रहे हैं या फिर मेडिसिन बना रहे हैं वो भी इंडिया में बन रहे हैं. ओके, सेकेंड थिंग, यूएसए जैसी कंट्री की बात करूं, दैट इज वेरी मच डेवलप्ड कंट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक पावरफुल कंट्री है. सो वो भी अपनी जो जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, या फिर जो उनके मेडिसिन है, ठीक है, तो वो कहां से इंपोर्ट करवा रहे हैं, इंडिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग, यूएसए जैसी कंट्री, दे आर प्रोवाइडिंग एफडीए, जो एफडीए होती है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, कि उनको कोई मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करना है, तो वो उनको पता है कि इंडिया हैज द टेक्नोलॉजी. ओके, इंडिया हैड दैट रिसोर्स आल्सो. ओके, सो दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स टू इंडिया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दे आर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर इन हेल्थ केयर सेक्टर. ठीक है, कि आप इसको डेवलप करो, वी आर हेल्पिंग यू, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. ओके, बाकी ये चीजें जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हो रही हैं, आपने देखे होंगे काफी ज्यादा जो आजकल ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं. ओके, सो वहां पे क्या है, रोबोटिक्स हो गए, एआई हो गया. ओके, सो दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स. ओके, आपका सेल थेरेपी हो गया, तो बेसिकली सेल थेरेपी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग पता लगाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द सेल्स, एंड बेसिकली हम उसको वहीं पे सेल्स चेंज करके ही वो कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन स्टडी डीप इन दिस थिंग्स. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया. तो सेल थेरेपी हो गया, आपका जीन थेरेपी हो गया. सो वी आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इन दिस थिंग्स. ठीक है, नाउ अब इस पूरे का अगर मैं ओवरऑल एक आपको सिनॉप्सिस दूं, ठीक है, ओवरऑल एक समराइज करूं सारी चीजों को. सो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंडिया के अंदर अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, ओके, सो व्हाट दैट मीन्स, मतलब इट बेसिकली मीन्स आपको बताता है कि समहाउ दिस सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इन नियर फ्यूचर, ओके, इट विल बी अ मेगा ट्रेंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो मेगा ट्रेंड अगर ये होने वाला है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ठीक है, नाउ कैसे करोगे, ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आता है. तो नाउ अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमारे ये होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर काफी मेरे जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. वहाँ पे आपको आपका SBI देखने को मिल जाएगा,
देयर विल बी HDFC ऑल्सो, ठीक है, जो आपके एसेट को मैनेजमेंट करेंगे वहां पे म्यूचुअल फंड्स में, निपॉन हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, वाइट ओक हो गया। सो दिस ऑल विल बी देयर, ठीक है, जब आप ट्रेड करने जाओगे इस सेक्टर में। ओके, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, जो आपको क्या करेंगे, हेल्थ सेक्टर में अगर आप जाते हो इस टाइम पे एक अच्छी एज में, ठीक है, अगर आप जाते हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड यू सो मच बेनिफिट इन न्यू फ्यूचर। ओके, तो मेगा ट्रेंड बेसिकली मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज नॉट अबाउट 2 और 3 ईयर्स, ठीक है, ये आपका है कि आप करीबन उसको 15, 20, 25 या 30 साल तक कर रहे हो। सो इट विल नॉट बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बट इट विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ओके, सो अगर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, सो दैट इज वेयर वी वांट टू प्लेस अवर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है, कि ऐसी चीज में जो बढ़ती जाए, ठीक है, सो जहां पे आपको दिखे कि हाँ ये वाला मार्केट मेरा जा रहा है, स्पाइक अप कर रहा है, फिर ऊपर की साइड जाता रहेगा कंटिन्यूसली। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द सेकंड जो आपका वीडियो था, ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, हेल्थ सेक्टर जो है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपका है, जहां पे आपको मेगा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज आवर ट्रेनर अंकित सिंह रावत, ओके, एंड स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।